زندگی نے لباس چھین لیا، موت نے کم سے کم کفن تو دیا۔ زندگی در بدر بھراتی رہی، زندگی در بدر بھراتی رہی، ارے موت نے مستقل وطن تو دیا، موت نے مستقل وطن تو دیا۔ تو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، خدا کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو۔ ارے میری لحد میں اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہے وہاں روشنی کی بات کرو، جہاں علی ہے وہاں روشنی کی بات کرو۔ صلوات پڑھیے صلی اللہ جبرائیل یہ دن رات دعا مانگ رہے ہیں، جبرائیل یہ دن رات دعا مانگ رہے ہیں، اور اس گھر کے فاقے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے قرآن کے سورے بھی غذا مانگ رہے ہیں، اس گھر کے فاقے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے قرآن کے سورے بھی غذا مانگ رہے ہیں۔ کہاں
الجلل الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب سید ممتاز حسین رضوی ابن سید عابد حسین رضوی کی ان کو اصابت صلوات اور پڑھ دی محمد قرآن کریم سورہ رحمان آیت کا نشان 26 اور 27 کل من علیہا فان ہر چیز فنا ہو جانے والی وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اور کیا باقی رہ جائے گا کس چیز کی بقا ہے وجہ ربک اب چہرہ کہیے کہ رب کا چہرہ وہ باقی رہ جائے اس کائنات میں جو بھی چیز بہت ایک چھوٹی سی بات کہوں ایک گیہوں کا دانہ ہے وہ بھی جب آتا ہے تو پھر زمین میں دفن ہو کے ختم ہو جاتا ہے کیا ختم ہو جاتا ہے نہیں ختم ہونے کے بعد پھر اس کو حیات جو ملتی ہے تو پھر اور نئی رنگ و روغن اور رنگت کے ساتھ اس جو مثال میں نے آپ کو دی کہ ختم ہونے کے بعد والی اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے جو چیز بھی ہے انسان یہاں آیا باقی رہے گا نہیں باقی رہے گا انسان 4 مرحلوں میں گزرتا ہے 4 مرحلوں سے گزرتا ہے پہلا مرحلہ کیا ہے بچپن دوسرا مرحلہ کیا ہے جوانی تیسرا مرحلہ کیا ہے بڑھاپا اور چوتھا مرحلہ موت یہ 4 مرحلے ہیں کیونکہ دیکھیے جب کسی کے اصالہ ثواب وغیرہ کی مجلس ہو تو کچھ گفتگو ایسے ہونا چاہیے بچپنا حق ہے بچپنا حق ہے نہیں حق نہیں بچپنا کسی کو نصیب ہوتا ہے کسی کو نصیب نہیں ہوتا جوانی حق ہے حق نہیں کوئی بچپن ہی نہیں مر جاتا بڑھاپا حق ہے نہیں ہے جوانی میں مر گیا بڑھاپا دیکھا موت حق ہے موت حق ہے
बचपना हक नहीं है, जवानी हक नहीं है, बुढ़ापा हक नहीं है, लेकिन मौत हक है। इसलिए मौत को याद रखना चाहिए। और आज जो मुसीबत सबसे बड़ी है कि सब मौत ही को भूले हुए जो हक है। जवानी हक नहीं है लेकिन अजीज है, याद है। और जो मराइल है तो बचपने में आइए देखिए, बचपने में होता क्या है। बचपने में इंसान रोता है, कोई चीज उसको चाहिए, बच्चे को रो रहा है, जिद कर रहा है, मांग रहा है। अच्छा, ये बचपने में रोना दो किस्म का होता है। बचपने में रोना दो किस्म का, एक रोना यह है कि उस रोने को भूल जाता है और दूसरा रोना याद रखता है। आप कहेंगे रोना भूल कौन सा जाता है? वो रोना वो भूल जाता है कि जो न रोए तो लोग मौत मुर्दा समझते हैं। इधर बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा रो नहीं रहा, दाई, नर्स, डॉक्टर, आयजा, अकरबा, बच्चा कैसा हुआ अभी कुछ नहीं कह सकते। क्यों? हो तो गया बच्चा, कहा अभी रोया नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, बच्चा नहीं रो रहा, बच्चा नहीं रो रहा, बहुत अच्छी बात है। कहेंगे नहीं जनाब वाला, बच्चा नहीं रो रहा है इसका मतलब कुछ मामला गड़बड़ है। और जैसे ही बच्चा रोया तो बच्चा रोया और सब खुश हो गए। भाई बच्चा रो रहा है या आप खुश क्यों हुए? क्या बच्चे का रोना ये बताता है कि ये जिंदा है, ये मरा हुआ नहीं है। तो पता ये चला कि आगोश मादर में आने के बाद रोना जो है वो जिंदगी की दलील बनता है। तो अब याद रखिए, वो कौमें कि जो जिंदगी में रोया करती हैं, वो रोया नहीं करती हैं बल्कि रो के अपनी जिंदगी को बतलाया करती हैं कि ये जिंदा कौम है। और जो कौमें रोती नहीं है वो मुर्दा कौम है। एक सलावत पढ़िए। तो रोना, अब जो दूसरा रोना है, मैंने कहा बच्चे का बचपने का रोना दो किस्म का होता है। अब ये रोना सब भूल जाते हैं। अब दूसरा रोना कौन सा होता है? दूसरा रोना वो होता है कि जो किसी चीज को मांगने के लिए, कि ये हमको मिल जाए, ये हमको दे दी जाए, ये हमको मिल जाए, ये रोना याद रखा जाता है कि भाई फला चीज के लिए रोए थे, फला चीज रो रो कर हमने मंगवाई है, फला चीज जो है इस तरीके से मंगवाई है। ये रोना जो है याद रखा जाता है। तो बचपने में रोने की बात है। जैसे ही ये जवान होता है तो जवानी की मंजिल में रोना है, अब रोना नहीं है। अब क्या है? गुस्सा है। अब मिजाज में वो जाहो जलाल है, किसी को मार देना, किसी के साथ गलत सलूक पेश करना है, किसी के घर में फांस जाना, किसी की छत पे फांस जाना, ये जवानी की मंजिल है। अब बुढ़ापे की मंजिल में आइए। जब बुढ़ापे की मंजिल में आए तो अब बुढ़ापे में होता तो सब कुछ है। एक जुमला कह रहा हूं, समझ पाइएगा, समझ लीजिएगा। होता तो सब कुछ है जमा किया हुआ, लेकिन तरतीब गलत होती है कि जहां पर जो सामान रखना था, मसलन जहां पर पैजामा था वहां तौलिया रख दिया, जहां पर असलहा रखना था वहां पर कलम रख दिया। क्या ये क्यों हो रहा है? क्या साहब ये बुजुर्गी की अलामत है। और अब ये तीसरा मरहला है। और जो चौथा मरहला मौत है, उसमें क्या होता है? देखिए, बचपने में अलग मिजाज, जवानी में अलग मिजाज, बुढ़ापे में अलग मिजाज, लेकिन मौत के मौके में क्या होता है? मौत में
क्या होता है कि जो आलम कब्र में है वही सिरात पे, वही कौसर पे, वही हश्र में, वही महशर में, हर मकाम पर एक सा। बहुत तवज्जो कीजिए। लेकिन एक मरहला है आपको, और मैंने जो इतनी देर आपको समय खराशी की है उसके लिए एक जुमला आपसे कह रहा हूं, अगर समझिएगा और बाहर आप समझ सकते हैं। सारे मज़ाहिब में बच्चा आता है, रोता हुआ आता है, लेकिन उसको उस रोने के दौरान कोई लोरी नहीं सुनाई जाती। बच्चा जब आगोश मादर में आता है तो सारे मज़ाहिब में रोता हुआ आता है, लेकिन कोई लोरी नहीं सुनाई जाती। लेकिन जब हमारे मजहब में बच्चा पैदा होता है और आगोश मादर में आता है तो उसको लोरी सुनाई जाती है, दाहिने कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में अकामत, और इधर ये अजान और अकामत पहुंची। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मैंने जो जुमला इस्तेमाल किया है ना कि मौत को लोग भूले हुए हैं, निजाम को देखिएगा। आप मुझको बताइए, अभी मजलिस शुरू हुई, तिलावत तो किया, अजान कह देते, अजान कह के मजलिस शुरू हो जाती। आगे के मौलाना अजान कहाँ शुरू हुई? अच्छा, मैंने कहा अजान नहीं, इकामत कह दीजिए। कहा नहीं भाई, वो नमाज से पहले दोनों चीजें होती। और तवज्जो कीजिएगा, इंसान को समझाया जा रहा है मौत को कैसे तुमको याद रखना है, लेकिन इंसान मौत को कैसे भूला हुआ है, इसके ऊपर आपको गौर करना है। कभी आपने देखा कि मस्जिद में अजान हुई हो और उसके बाद अकामत हुई हो, अजान और अकामत के बाद नमाज ना हुई हो? कभी हुआ ऐसा? अगर अजान हुई, अकामत हुई तो फिर नमाज हो गई। बात क्लियर है? अब दूसरा जुमला कहने जा रहा हूं। कभी मस्जिद में आपने देखा कि नमाज हुई हो, न अजान हुई न अकामत, ऐसा हुआ है? कभी ऐसा देखा कि नमाज बगैर अकामत के हुई हो, बगैर अजान के हुई हो? नहीं। अब मैं आपको आपकी जिंदगी में दिखाता हूं। जब पैदा हुए तो अजान भी हुई, अकामत भी हुई, नमाज नहीं हुई, लेकिन जब मर गए तो नमाज हुई, ना अजान हुई, ना अकामत हुई। अब मरने में हुई, अकामत हुई, नमाज में। समझ में आया? समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? देखिए, इशारों से बात समझाई जाती है। अजान कब हुई? जब पैदा हुए थे। अकामत कब हुई? जब पैदा हुए थे। नमाज कब हुई? अजान अकामत वहां हुई थी और नमाज यहां हो रही है आखिर में। उस अजान और अकामत की नमाज ये है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, ये है। अब अपने मस्जिद में जाकर देखिएगा कि अजान, अकामत और नमाज में कितना फासला होता है। अजान, अकामत, नमाज कितना फासला होता है? लम्हों का फासला होता है। कुछ समझ में आया? निजाम कुदरत ने कुछ ऐसा बनाया, कहा देखो अजान भी हो गई है, अकामत भी हो गई है, अब नमाज होना बाकी है, लेकिन जो तुम्हारे दरमियान ये वक्फा है, इस वक्फे को हयात और जिंदगी ना समझो, ये समझ लो उतना ही वक्फा है जो अकामत और नमाज के दरमियान होता है। अब इस वक्त में तुमको करना क्या है भाई? ये वक्त आप कैसे गुजारते हैं? अजान और अकामत नमाज में, इसमें आप बावजू होते हैं, इसमें आप बारगाह इलाही में जाने के लिए आमादगी का इजहार रखते कि हम अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हम मुसल्ले के ऊपर जा रहे हैं, हम नमाज के लिए जा रहे हैं। तो गोया जब इंसान इस दुनिया में आए, अकामत और अजान हो चुकी हो, तो उसको अपने को ये समझना चाहिए कि हम इस मंजिले इम्तिहान में हैं कि जिसकी हमें बका और
ملے گی جو نماز کے بعد موت کے بعد ملے گی. اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن کریم 67 نمبر سورہ ملک جا کر دیکھیے گا, اس کی دوسری آیت کو دیکھیے گا, بہت غور سے پڑھیے گا, دیکھیے گا. الذی خلق الموت, اللہ نے موت کو خلق کیا اور کس کو؟ حیات کو خلق کیا. موت پہلے خلق ہوئی, حیات بعد میں. بھئی الفاظ کے اعتبار سے موت خلق ہوئی, حیات خلق ہوئی. دنیا سمجھتی ہے کہ پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے. قرآن کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں پہلے موت ہے بعد میں حیات ہے. اب میں نے جو ابتدا میں جملہ کہا تھا کہ گیہوں کا دانہ خود ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیسی لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہوتی ہے, تو یاد رکھیے اس کو کبھی حیات نہ سمجھیے گا کہ ہماری یہ حیات ہے. اصل میں جب ہم فنا ہو جائیں گے اور فنا ہونے کے بعد جو ہم کو حیات ملے گی وہی ہمارا مقدر بھی سنوارے گی, آخرت بھی بنائے گی. صلوات پڑھتے محمد. اب آپ کہیں گے کہ صاحب موت کے بعد حیات, ایک جملہ چھوٹا سا کہہ کر بات ختم کی دیتا ہوں, چونکہ موت اور حیات سے متعلق گفتگو ہے اور اپنی بات کو واضح کرنا ہے. موت اور حیات, ہم کو زندگی کو بسر ایسے کرنا چاہیے کہ موت کے بعد حیات ملے, موت کے بعد موت نہ ملے. موت کے بعد حیات ملے, موت کے بعد موت نہ آئے. اب آپ فرمائیں گے صاحب یہ موت کے بعد موت کیسے آتی ہے اور موت کے بعد حیات کیسے ملتی ہے؟ اب آپ بتائیے کہ موت کے بعد حیات اور موت کے بعد موت, بہت ایک دم واضح کہ آپ کے سامنے کی بات بالکل بیان کی دے رہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. دیکھیے اسی امام باڑے کو لے لیجیے. یہ امام باڑہ کس نے بنایا ہے؟ اس امام باڑے کے بنانے والے کو آپ لوگ جانتے ہیں؟ اس میں سے کسی کی ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کے والدین میں سے کوئی تھا؟ کوئی نہیں ملا. کتنے زمانے قبضے میں رہا اور بہرحال یہ ہماری اور آپ کی سب کی محنت سے آیا. کوئی نہ ملا ان سے, نہ کوئی ان سے ملاقات کیے ہوئے ہے, نہ اس کے باپ نے ملاقات کی, نہ دادا نے ملاقات کی, لیکن جانتے آپ نے دیکھی وہ دکھا ہے سب ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اگر یہ, اب دوسرا لفظ بدلے دے رہا ہوں, اگر یہ جس نے امام باڑہ بنایا یہ امام باڑہ نہ بنا کے اپنے بیٹے کے لیے اتنی بڑی حویلی بنا دیتا تو آپ جانتے ہو اس کو؟ آپ نہیں جانتے؟ اتنے نواب ہیں, حویلیاں بنی ہوئی ہیں, گر رہی ہیں, ڈھہ رہی ہیں, نہیں جانتے نا. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مرے ہوئے زمانہ گزر گیا لیکن ان کی یہ خدمت سینکڑوں سال بعد بھی ان کو زندہ کیے ہوئے ہے. بس سینکڑوں سال بعد ان کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ موت کے بعد ان کو حیات مل گئی ہے. سینکڑوں سال بعد زندگی یہ حیات ہے. اور اب اپنے معاشرے, میں کہیں باہر سے تو آیا نہیں, اسی معاشرے میں اب موت کے بعد موت کیسے آتی ہے اس کو بھی میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے ایک صاحب تھے بہت ہی خراب قسم کے انسان, بہت خراب قسم کے انسان. یہ معاشرے میں ہمارے ہوتے وہ بیچارے مر گئے. جب مر گئے تو ان کا تذکرہ کیا گیا. اب یار وہ بڑا خراب آدمی تھا. جیسے ہی اس مرنے والے کی
खराबियों की बात आती है क्या कहते हैं आप? आप छोड़ो मर चुका है ना, कहते नहीं कहते? गर्दन हिला रहे आप तो कहते अरे भाई छोड़ो वो मर चुका। बस अब मौत के बाद बस छोड़ो भाई छोड़ो, ये मौत के बाद मौत है, मौत के बाद ये मौत है। तो याद रखो जो बाकिरदार इस दुनिया से गुजर जाता है वो दुनिया में आपकी निगाहों से ओझल होके जेर जमीन चला जाता है, लेकिन मौत के बाद उसको हयात मिलती है, उसको हयात मिलती है। और जो अब लफ्ज को बदले देता हूं और सामने का वाज़े नमूना आपको पेश करता हूं कि याद रखिए जिसने भी अपने को दरे-आले मोहम्मद से वाबस्ता कर लिया वो कभी मर नहीं सकता है। वो लाख इसीलिए हम मुर्दा नहीं कहते, हम उसको मौत आना नहीं कहते, हम उसको हलाक होना नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? हम कहते इंतकाल हो गया। ये लफ्ज़ इंतकाल इस्तेमाल करके बतलाना चाहते कि अरे उसकी जगह बदल गई है, अब वो यहां से वहां मुंतकिल हो गया। बस जहां उसकी जगह बदली और मुंतकिल हुआ तो याद रखो वो हमारे सामने नहीं होता, लेकिन अपने किरदार के जरिए से, अपने उन हुस्न सलूक के जरिए से जिंदा रहता है, जिंदा रहता है और सब बाकी रहते हैं। और अब इससे सब वाज़े और क्या, चूंकि हमारे बिल्कुल मौजू के मुताबिक ये बताइए शब आशूर इमाम हुसैन ने सबसे कहा था चले जाओ, कोई गया था उनके? अच्छा हबीब इब्न मज़ाहिर तो बहुत पुराने थे, बचपन के दोस्त। जनाब वहाब कितने दिन पुराने थे? रास्ते में मिले थे। उनके ईमान में कुछ कमी होती? वो बचपन से हैं, ये तो अभी ताजे ताजे रास्ते में मिले। ये कहते थे कि अच्छा मौला अब आप कह रहे हैं तो हम जाते हैं, इजाजत मिल रही थी इमाम की तरफ से, और दो चीजें जो चाहिए थी वो दे भी रहे थे, एक हयात और दूसरी जन्नत। दोनों चीजों की जमानत भी हो रही थी। कोई गया, कोई उठा। देखिए ईमान की पुख्तगी को देखिए और यकीन की मंजिल में देखिए। और एक लफ्ज और कह देता हूं, ये तो शबे आशूर हबीब बचपन के थे, जनाब वहाब जो 15-20 दिन पहले आए थे, और जनाब हुर वो तो चंद लम्हों वाले थे। लेकिन आपने देखा कि किसी के ईमान में रत्ती बराबर फर्क है। हुर अभी आए हैं, उनका भी वही जज्बा, हबीब बचपन के उनका भी वही जज्बा, ज़ुहैर इब्न कैन उनका भी वही जज्बा। जज्बे में सबका मरहला एक। ये नहीं है कि साथ मुद्दत के एतबार से कि वो 50 साल से थे इमाम हुसैन के साथ, वो 40 साल से थे, वो 20 साल से थे, वो 10 साल से थे। ये हमारे आपके लिए भी दर्स है, इबरत है हमारे आपके लिए। और क्या जब वो सब इमाम हुसैन की खिदमत में थे तो वहां सिनो साल रंग कौम कबीले किसी चीज का फर्क नहीं था। जब सब हुसैनी थे तो सब ईमान की मंजिल में बराबर थे, चाहे अभी वाला हो या 15 दिन बाद वाला हो या बचपन वाला, भाई सब एक थे। तो फिर हमको गौर करना चाहिए कि हमारे ईमान में क्या मामला है, हमें भी तो तौलना चाहिए ना। ये इसीलिए तो है, हमें भी तो तौलना चाहिए ना कि भाई हमारे ईमान में ये हमसे बेहतर ईमान में, ये हमसे बेहतर ईमान में, इनका यकीन इस मंजिल पे, और हमारा ईमान क्या मिनटों में लड़खड़ाया जा रहा। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ईमान को यकीन की मंजिल में लाएं, और जब यकीन की मंजिल में होगा
मंजिल में। जब यकीन की मंजिल में हम होंगे तो फिर याद रखिए, न क्यों कहेंगे, न चेहरा कहेंगे, न कैसे कहेंगे, न किस लिए कहेंगे। और यकीन की मंजिल में शब आशूर सबका ईमान था। सब जानते थे कि जिंदगी तो मिल जाएगी यहाँ पर अगर उठ के चले गए। और अब हयात नहीं देखी, जिंदगी की बात है, हयात की बात अभी नहीं कर रहा। जिंदगी मिल जाएगी, अभी उठ के चले जाते 5 साल जिंदा रहते, 4 साल जिंदा रहते, 7 साल जिंदा रहते। ज़ुहैर इब्न कैन उठ के चले जाते 10 साल जिंदा रहते। जनाब वहाब चले जाते 20 साल जिंदा रहते। ये सबको उठ के जाने के बाद जिंदगियां तो मिल जाती, लेकिन उसके बाद मर के किसी कोने में दफन हो जाते, पता न चलता। लिहाजा ईमान यकीन की मंजिल में था। सब चाहते थे कि उठ के गए तो जिंदगी तो मिल जाएगी लेकिन हयात नहीं मिल पाएगी। लिहाजा दरे हुसैन पे मर जाओ तो अगर 1400 साल बाद हुसैन का तस्करा होगा तो ज़ुहैर का भी तस्करा होगा, सईद का तस्करा भी होगा, हबीब का तस्करा भी। चेहरे को वजह क्यों कहा जाता है? क्योंकि चेहरे के जरिए से पहचाना जाता है ना। अब मैं आपको सामने बहुत आसान आसान बातें कर रहा हूँ, छोटी छोटी सी ताकि बातें ज़हन नशीं हो जाए। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, खुदा न खास्ता डॉक्टर ने आपको कोई मर्ज बताया, आप पूछेंगे मौलाना ये किस वजह से, वजह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना आपने, यानी किस चेहरे की वजह से, भाई इसकी क्या वजह है। मैंने क्या कहा था कि वजह माने चेहरा, तो वजह के माने क्या हुआ, चेहरा। भाई इसका कौन सा चेहरा है, फलाने काम की क्या वजह है, उसका कोई चेहरा पूछ तो उसका चेहरा नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वजह का मतलब ये होता है कि पहचानने के लिए जो दलील सामने आए। भाई आप चेहरा पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं, लिहाजा चेहरे को वजह कहा गया। अब डॉक्टर के पास गए, जब आपने वहां पूछा कि भाई वजह क्या है इसकी, तो उसने बताया इसकी वजह ये है कि मसलन आप फलानी चीज का नमक का ज्यादा इस्तेमाल करते, लिहाजा इस वजह से आपका बीपी बढ़ गया। उनसे पूछा साहब शुगर मेरी क्यों बढ़ गई, कहने लगता है आपने फलानी बहुत शुगर खा ली, इस वजह से शुगर बढ़ गई। तो अब वजह क्या है, तो अब रब की वजह क्या है जो बाकी रहेगा, भाई उसकी भी तो कोई दलील होना चाहिए कि कैसे बाकी रहेगा, क्यों कर बाकी रहेगा। तो लाजिम था कि बका के लिए अल्लाह कोई ऐसा चेहरा सामने पेश करे कि जिसके जरिए से हम ये पहचान सके कि वो है। क्या कहा, कुंतु कंजन मख्फिया, हम एक छुपा हुआ खजाना थे। हमने क्या चाहा, हमने कहा कि हम पहचाने जाएं, लिहाजा अपने को पहचानवाने की वजह क्या थी कि नूर को खल्क किया गया, एक नूर खल्क हुआ और फिर उसके वजह से ये पहचाना गया। तो याद रखो जो वजह बने उसी को तो वजहुल्लाह कहा जाएगा, वही तो वजहुल्लाह होगा। और ये जो वजहुल्लाह की बात है और मैं आपके सामने
वली का मतलब क्या होता है? मसलन आपके सामने नायब कह लीजिए, वाइस कह लीजिए, नुमाइंदा कह लीजिए, ये सब जो हैं छोटे लफ्ज हैं। इन सब से ऊपर जो बड़ा वली का, आप अपनी बेटी के वली हैं, ये इस मैयत के वली हैं। समझ गए? वली का मामला बहुत बड़ा है, मतलब टोटल या बाप से अच्छा कौन समझेगा? समझाया देता हूं, एक लफ्ज की सलावत पढ़िए मोहम्मद। 18 ज़िलहिज को क्या हुआ था? काहे का ऐलान हुआ था? देखिए, विलायत का ऐलान हुआ था, वली बनाए गए थे। तो उसमें एक लफ्ज पैगंबर ने फरमाया था, उसको आप लोग समझ लीजिए। वो लफ्ज क्या था? पैगंबर ने क्या फरमाया था? एक जुमला, क्या मैं तुम्हारी नफ्सों के ऊपर तुमसे ज्यादा तसर्रुफ का हक नहीं रखता? कहा था नहीं कहा था? सबने क्या कहा? हाँ हाँ, सबने कहा जी जी आप रखिए, यही तो कहा था ना। वलायत समझ में आई नहीं आई? विलायत का मतलब ये होता है कि नफ्स तुम्हारी होगी, जान तुम्हारी होगी, कंट्रोल वली का होगी। वली के पावर, पूरा पावर वली के पास। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मौलाए कायनात का एक मरहला आया, मंजिल है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वली समझ गए? अल्लाह के वली कौन? मौलाए कायनात। जब विलायत का मनसब ट्रांसफर हुआ तो लाजिम था, ऐसे किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है कि मैं यहाँ नमाज की बात हो कि नमाज पढ़ाना मौलाना साहब, और मैं नमाज मैं नमाज के लिए ना आऊँ, जब मसलन मजलिस पढ़ने के लिए ना आऊँ और मैं अपने क्या के ड्राइवर को भेज दूँ या चपरासी को भेज दूँ कि जाके पढ़ाओ। सही है? लाजिम है, क्वालिटी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए नहीं आ रहा था तो लाजिम था कि मैं उसको भेजता कि जिसके अंदर मजलिस पढ़ने की क्वालिटी हो। अल्लाह का वली कौन होगा? अल्लाह का वली वो होगा कि जिसके अंदर उसकी वाली क्वालिटी हो। देखिए, अभी हम पर कोई इल्जाम ना लगाइएगा कि साहब ये तो ज्वाइन शहरी हो गए हैं और ये तो मलंगी हो गए हैं, ये तो फलाने। थोड़ा माशाल्लाह से बहुत तेज जबान चलती है। मैं अभी आपके सामने जो बात होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह के अंदर क्या क्वालिटी है? अल्लाह कौन है? कादिर है ना? आप भी तो कादिर हैं, नहीं कादिर? आप कादिर हैं कि मसलन आप जो है कोई भारी वजनी सामान को उठा के यहाँ घुमा रख सकते है ना? आप आलिम है, अल्लाह आलिम है, आप भी आलिम है, 50 लोगों को आप आलिम कह देते हैं, ठीक है? अल्लाह राज़िक है तो अब लाजिम है, जब अल्लाह राज़िक, आप भी राज़िक है। आप कैसे कहिए मैं कैसे राज़िक हूँ? अल्लाह राज़िक है। 40 आदमियों को नौकरी पे रखे, उनका रिस्क मैं दे रहा हूँ, राज़िक हुए। सादिक है, मैं तो खुद सच बोलता हूँ। सती है अल्लाह, आप भी सती हैं, है ना? रहमान है वो, आप भी रहमान है। वहां देखा जुल्म हो रहा है, आपने जाके रहम किया, बचाया उसको। सब आ सकती नहीं जो सिफात है, लेकिन 2 मरहले ऐसे हैं कि जो अल्लाह की जात में है वो कोई बंदा नहीं ले सकता। वो कौन सी सिफत है? एक मौत और एक हयात। ये दोनों का कंट्रोल किसके पास? अल्लाह के पास। तो याद रखो, जिसको भी तुम खलीफा बनाना चाहो, जिसको भी तुम रहबर बनाना चाहो, जिसको भी तुम रहनुमा बनाना चाहो, मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मुझको इतना बता दो कि उसके अंदर ये 2 क्वालिटियां हैं या नहीं है कि मौत पे कंट्रोल होना चाहिए, हयात पे कंट्रोल होना चाहिए। अब जो भी खुदा का वली होगा उसके कब्जे में मौत भी होगी, हयात भी होगी। अब अगर तुम्हें अली की मंजिल को समझना है तो लाओ जिंदा को, नमाज पढ़ाएंगे तो मर जाएगा,
بات نہیں کرتا ہوں، قرآن کا حوالہ اور ریفرنس دیتا ہوں، ریفرنس۔ اللہ کا شکریہ ہے۔ قرآن مجید کے جا کر دیکھیے گا 28 نمبر سورہ قصص آیت کا نشان 6، پہلا لفظ دیکھیے وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ جس کو وارث بناتا ہے نا زمین پر، نُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کمپلیٹ، ابھی آپ کے سامنے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو آپ آسانی سے، کمپلیٹ اتھارٹی دیتا پروردگار، ٹوٹل پاور دیتا پروردگار، ٹوٹل پاور کے ساتھ وہ زمین کے اوپر آتا ہے، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، یہ پاور ہوتی ہے۔ تو اب دونوں صفتیں مولا کائنات، اب لنگ یہی تو ہے ہی ہے۔ دیکھیے ایسا ہے، اچھا خدا کو خدا آپ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کیوں بتائیے؟ دو جملے آپ سے اور کہہ دیتے ہیں، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، مستعان ہے، جلیل ہے، جمیل ہے، وکیل ہے، کفیل ہے، قہار ہے، جبار ہے، رازق ہے نا، یہ سب تو ہے۔ اسی وجہ سے خدا کو خدا کہتے ہیں۔ اور اب یہی سب جو ہے ٹرانسفر ہوا ولی کی طرف۔ ہم نے بڑی احتیاط سے کام لیا، ہم نے کہا یہ خدا ہے اور یہ ولی خدا ہے، مولا کو ولی خدا۔ نصیریوں نے کیا کہا؟ نصیری نے جب سارے صفتیں دیکھی خدا میں تو کہا یہ بھی خدا ہے، اور جب ساری صفتیں دیکھی مولا میں تو کہا یہ بھی خدا ہے۔ لیکن یاد رکھیے مولا کائنات وہ آئے تھے ولی خدا بن کے، لوگوں نے ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، تو اب لازم تھا اللہ کے اوپر کہ اللہ مولا کائنات کی کوئی ایک صفت لے لے، کوئی ایک صفت علی کی لے لی جائے تاکہ وہ رہے اور وحدت برقرار رہے، وہ خدا رہے، یہ ولی خدا۔ تو اب ایک صفت مولا کی چاہیے تھی کہ ایک صفت علی مل جائے، علی ایک صفت دے دو، تو عجب نہیں کہا ہو بھائی۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، بھائی دیکھیے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لیکن قرآن میں آج تک موجود ہے۔ یہ موجود اسی لیے ہے کیونکہ ڈیل اللہ نے کی تھی، یہ ڈیل ہوئی تھی، یہ اس کی وجہ سے آج تک موجود ہے۔ تب یاد رکھیے جب یہ بات آئی تو عجب نہیں، پروردگار نے کہا اے علی ایک صفت دے دو، ہم سے لے لو۔ پوچھا ہوگا اے علی چاند لے لو، ایک صفت دے دو، تو مولا نے کہا ہوگا کہ چاند کو پہلے توڑا جا چکا ہے، اب نہیں لوں گا۔ دو تین جملے ہیں۔ تو پھر کہا ہوگا کہ سورج لے لو علی، ایک صفت دے دو، تو مولا نے کہا ہوگا کہ سورج کو کیا کروں گا لے کے، وہ تو پہلے ہی اشارے پہ گھوم چکا۔ پھر عجب نہیں کہا ہوگا قدرت نے کہ اے علی وہ جنت ہم سے لے لو لیکن ایک صفت دے دو، تو عجب نہیں کہا ہو کہ جنت میں کیسے لوں، وہ تو میرے بچوں کی جنت ہے، جس کے جوان میرے بچے ہیں۔ اب جملہ بہت ہی احتیاط سے استعمال کرو۔ اب عجب نہیں، خدا نے کہا اے علی جو مرضی ہو وہ لے لو، جو مرضی ہو وہ لے لو۔ تو عجب نہیں، علی نے کہا بس یہ مرضی دے دو، نفس لے لو، تم کو اونگ بھی نہیں آئی، میں سویا جاتا ہوں۔ صلوات
नफ्स ले ली गई। ये है अजमत अमीर उल-मोमिनीन। याद रखो मैंने क्या कहा था, पावर पूरी दे दी थी ना, पावर पूरी दे दी थी, तमकीन पूरी मिल गई थी, पूरा कंट्रोल मिला था। तो अब एक शायद शक व शुबा रह जाता कि साहब मर्जी पे बात आके कुछ फंस न जाए कि साहब वो मर्जी नहीं थी, ये तो खालिक ने कहा अली सो जाओ, मर्जी भी मैं दिए देता हूं। और अब मर्जी भी मिल गई है, अब जब रजा भी आ गई, अब परवरदिगार अब दुनिया समझ ले कि रज़ी अल्लाह लिखना जो है ये बेकार है। अब रज़ी अली लिखो, क्योंकि अल्लाह की मर्जी अल्लाह के पास नहीं, अली के पास है। सलावत पढ़ो अमीरुल मोमिनीन, हमको समझने की जरूरत है बस। अब चूंकि इन्होंने कहा कि वो मरहूम जो है जनाबे अबू तालिब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुबाहिसा होता था, 2-4 जुमले जनाब अबू तालिब के सिलसिले में बस बात ख़त्म कर देता। लेकिन चूँकि ये ईमान अबू तालिब के सिलसिले में मैं भी बहुत ज़्यादा वो रखता हूँ कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ के पहुँचाया जाए, और इसी वजह से मेरा हौजे हो या कोई चीज़ भी हो, मैं सबका नाम जनाब अबू तालिब पे रखता हूँ। तो जनाब अबू तालिब के सिलसिले आप कभी गौर कीजिए, 2 जुमले 2-3 जनाब अबू तालिब के सिलसिले में इतना परेशानी क्यों हो सकती? गौर कीजिए, वो काफिर थे, वो इस्लाम नहीं लाए थे और उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया था, और वो आखिरी वक्त कह रहे थे कि चचा आप इस्लाम को कलमा पढ़ लीजिए, है ना सर? कितना आफत मची हुई है, जोर के साथ जनाब अबू तालिब जो है कलमा नहीं पढ़ा। अब मैं सिर्फ 2 जुमलों में बात खत्म करूंगा, 2 जुमलों। एक जुमला ये कि जनाब अबू तालिब काफिर थे, और एक जुमला ये कि अबू सुफियान मुसलमान था। इससे बेहतर मेरे ख्याल से रिजल्ट है नहीं, खुलासा है। पूरे मुअर्रिखीन ने अपने कलमों को तोड़ दिया 2 जुमले लिखने में। जिन्होंने 8 बरस के सिन से लेके 50 बरस के सिन तक पैगंबर को पाला पोसा हिफाजत की, उनके लिए कि साहब वो काफिर थे, और वो जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम को लेके आया, कहा जाता अबू सुफियान मुसलमान था। 2 जुमले और सारी बात का क्यों इतना इसरार? हमको क्या मालूम, आपको भी कुछ नहीं मालूम। अब मैं अरबी फारसी नहीं, सिर्फ उर्दू के 2 जुमले हैं। सारे मुसलमानों को कसम खिलवाइए, सरों पे कुरान रखवाइए, और उनसे कहिए कि मुसलमानों तुम बताओ कि अबू सुफियान के इस्लाम से इस्लाम का क्या फायदा हुआ? सारे मुसलमानों को कसम खिलवाइए, बताओ अबू सुफियान के इस्लाम से इस्लाम का क्या फायदा? और दूसरा जुमला कि ये बताओ कि जनाब अबू तालिब के कुफ्र से इस्लाम का क्या नुकसान हुआ? 2 जुमले हैं। पूछिए अबू सुफियान से क्या फायदा हुआ और जनाब अबू तालिब से क्या नुकसान हुआ? अगर वो न बता पाए आपको ना, तो उससे कहिएगा ठहरो, अभी मैं तारीख के औराक को पलटता हूं, और जब तारीख के औराक को पलटिएगा तो आपको पता चलेगा कि अबू सुफियान ने इस्लाम को मुआविया जैसा बेटा दिया और यजीद जैसा पोता दिया, और अबू तालिब ने इस्लाम को अली जैसा बेटा दिया और हसनैन जैसे पोते।
तालिब का जो किरदार था, जो उनकी हयात थी, सबके ज़हनों में जुमला, एक एक आदमी के ज़हनों में जुमला मौजूद है। जब मुशरिकीन मक्का जनाब अबू तालिब के पास आए थे और आने के बाद कहा था कि अबू तालिब अपने भतीजे को हमको दे दो, हमसे हमारा जो भी बेटा हो तुम ले लो, जो तुम्हें पसंद हो ले लो, जितनी दौलत चाहिए ले लो। उस वक़्त जनाब अबू तालिब ने उनको भगाने के बाद, घर के अंदर आने के बाद क्या कहा था? पैगंबर से कहा था, मेरे लाल, मेरे भतीजे, जो तुमको हुक्म मिला है उसको तुम अंजाम दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यही तो कहा था ना। ये जनाब अबू तालिब की अजमत, जनाब अबू तालिब की अजमत के वादा खुद किया था उन्होंने, और उस वादे को वफा पूरी नस्ल से करवा दिया। करबला में कौन है? पूरी नस्ल अबू तालिब। हुसैन कौन है? अब्बास कौन है? अली अकबर कौन है? अगर इस्लाम के इस पौधे को, इस दरख्त को सींचा है तो सिर्फ लहू है अबू तालिब। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बुजुर्गों के वादे की औलाद पूरी लाज रखती है कि मेरे बाप ने वादा किया पूरा करना, मेरे दादा ने वादा किया। मैं ये समझता हूँ कि जब इमाम हुसैन मदीने से चल रहे थे ना, तो उन्होंने भी अपने उस दादा के वादे को अपनी निगाहों के सामने रखा होगा कि मेरे दादा ने वादा किया था कि दीन के ऊपर किसी तरह कोई आँच नहीं आने दूंगा, सबको लेकर चले। अब्बास भी थे, अली अकबर भी थे, कासिम और मोहम्मद भी थे, सब लोग थे। अज़ादारों, इमाम हुसैन करबला में जब तशरीफ लाए, कौन कौन उनके साथ थे? कुछ बुजुर्ग थे, कुछ जवान थे, कुछ बच्चे थे। एक सोचने वाली बात है और गौर कर रही बात है कि जनाब अली असगर, शहजादे अली असगर, उनको शहजादी सुगरा आने नहीं दे रही और वो किसी के पास नहीं आ रही। अगर शहजादे अली असगर को छोड़ दिया जाता मदीने में, तो शहजादे अली असगर जनाब सुगरा का दिल भी बहल जाता, उनकी चाहत भी पूरी हो जाती, और उसके बाद शहजादे अली असगर जो है वो भी जो है। लेकिन अज़ादारों, इमाम हुसैन ने चुप्पे से कुछ कान में कहा। मसाइब की मंजिल है, चंद जुमले मसाइब को कहना है, मसाइब में क्या आदमी बताया सब सुने। अभी जनाब अली असगर 10 मुहर्रम के लिए के 6 महीने के थे, तो अभी 28 रजब को कितने बड़े थे? ये सब आप कैलकुलेट करते रहिए कितने बड़े थे। लेकिन जब इमाम हुसैन ने उनसे कुछ कहा तो फिर वो हुमक के आ गए। अज़ादारान ने इमाम मज़लूम, इमाम हुसैन ने क्या कहा मुझको नहीं मालूम। किसी ने तारीख में नहीं लिखा कि इमाम हुसैन ने ये कहा, इमाम हुसैन ने ये कहा। मैं तो ये समझता हूँ कि इमाम हुसैन शहजादे अली असगर को लाना इसलिए चाहते थे कि जब अली असगर की शहादत वाक़े हो जाएगी और तारीख लिखी जाएगी कि हुसैन शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए और मोहम्मद शहीद हुए, तो कोई हो सकता हो ये कहते कि अब्बास बहादुर थे, वो लड़े होंगे, अली अकबर बहादुर थे। लेकिन जब ये लिखा जाएगा शहजादे अली असगर 6 महीने का बच्चा शहीद हुआ, तो हर एक दांतों में उंगलियों को दबा लेगा कि इतना छोटा बच्चा जो शहीद हुआ, इसका मतलब हुसैन के साथ बड़ा जुल्म हुआ। क्योंकि मेरे मौला को मालूम था कि किस तरीके से, भाई कौन रावी था, सब दुश्मन के रावी थे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक वजह ये होगी और दूसरा अजब नहीं इमाम हुसैन ने कहा हो
चलो। पूछा होगा बाबा मैं क्यों चलूं आपके साथ, हमको बहन के पास छोड़ दिए। तो कहेंगे कहाँ होगा, जब नहीं कहे अली असगर, जब तुम्हारे भैया शहीद हो चुके होंगे, जब तुम्हारे चचा शहीद हो चुके होंगे, जब सब शहीद हो चुके होंगे, ये बताओ जब बेकसी के आलम में मैं हल बिन नासिर यांसुरना की सदा बुलंद करूंगा, तो बताओ कोई तो हो जब मेरी आवाज पर इस्तिग़ासा कहे, लब्बैक या हुसैन कहे, ए बेटा अली असगर, अरे तुम मेरे साथ चलो ताकि जब मैं वो आवाज बुलंद करूं, अरे कौन है जो मेरी नुसरत करे, तो तुम आ जाना। यही वो मंजिल है जो एक मर्द मोमिन यकीनी तौर के ऊपर जो ज़ाहिर भी थे और जिन्होंने ज़ियारत का शरफ हासिल किया था। क्या मज़लूमियत का आलम है करबला में, और यकीनी तौर के ऊपर यही शरफ है हमारे लिए, हम ज़ियारत करके चले आते हैं क्योंकि वहाँ उन शुहदा की कबूर है, रोज़े है, वो मकाम है कि जहाँ पर वो इमाम हुसैन और अंसार इमाम हुसैन किस तरीके से शहीद किए गए। अज़ादारान इमाम मज़लूम शहज़ादे अली असगर उनको भी लेकर आए, 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे। अज़ादारों बहुत गम की बात होती है अगर किसी का अपना कोई रिश्तेदार मर जाता है, कोई कहता है मेरा शौहर मर गया, कोई कहता है मेरा बाप मर गया, कोई कहता है मेरा मामू मर गया, कोई कहता है मेरा चचा मर गया। सच बताओ किसी को भी सब्र नहीं आ सकता है कि मेरा अजीजदार मर गया, मेरा रिश्तेदार मर गया, मेरा फलाना रिश्ते का मामू लगता था, चचा लगता था। लेकिन अज़ादारों तुम ये बताओ कि कोई भी हमारा रिश्तेदार मर जाता है तो हम कम से कम इज्जत और एहतराम से जनाजा तो दफन कर लेते हैं, मजलिसें तो कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि जब आका ज़ैनुल आबिदीन के आइज़ा एक चचा का लाशा कहीं पड़ा है, कहीं बाबा का लाशा पड़ा है, कई भाइयों के लाशें पड़े हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, कहीं वली अकबर के लाशे को अज़ादारा नहीं मान लो। बस चूंकि आइज़ा की बारी है, मैं कहूँगा आबिद मुमताज़ से इंतकाल कर गए, अरे ठीक है, इनकी ज़ौजा, इनकी शरीकी हयात, उनका वो वारिस दुनिया से चला गया, मैं कहूँगा तुम्हारा वारिस गया तो जनाजा तो तुम्हारे बेटे ने दफन कर दिया, लेकिन कभी तसव्वुर किया कि जब रबाब का वारिस दुनिया से गया तो बेटा मौजूद ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन जनाजा दफन न हुआ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस अज़ादारा नहीं मालूम, 2-4 जुमले बेटे की तस्कीन के लिए जनाब ज़ैनुल आबिदीन किस अंदाज से हमारे चौथे इमाम जब 11 मुहर्रम को काफिला जा रहा है, सबने जुमले को सुना ना। जब फूफी ने पूछा सैयदे सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों बदल गया, क्या कहा था, एहसास कर पाइएगा उन जुमलों का। लाखों दफा आपने सुने होंगे वो जुमले। क्या जुमला कहा था, फूफी अम्मा जालिमों ने अपने कुश्तार नजीज दफन कर दी, मेरे बाबा का लाशा पड़ा है। एहसास कर पाइएगा कि किसी के बाप का लाशा जमीने घर पर पड़ा हो, बेटे पर क्या गुजरी होगी। अरे हाथों में हथकड़िया, पैरों में मेड़िया, गले में तोते गातार, अरे सैयदे सज्जाद का क्या हाल है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। बस अज़ादारों, 2 जुमले मुसीबत के बचे हैं, मजलिस को तमाम कर दूंगा क्योंकि बाप की मजलिस है, बेटे को पुरसा देना है, दामादे को जो उसका वारिस है, जो उसका वली है, पुरसा देना है, बात खत्म कर दूंगा। अज़ादारों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये जुमला आप लोगों ने हजारों बार सुना। उसके बाद करबला, उससे निकल के कूफा, कूफे के दरबार, कूफे के बाजार, फिर उसके बाद शाम का दरबार, शाम के बाजार, फिर उसके बाद मदीने वापसी, पूरा सफर आपने देखा। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के इस मंजर को बयान नहीं किया। सब सुन गए, कहाँ मुसीबत पड़ी, शाम, अब शाम आगे, अब बाबा के गम को भूल गए। नहीं, गलत काम है, भूले नहीं, सीने में है, दिल के अंदर वो गम है, बस
एक जुमला कहकर बात खत्म करूंगा। और चूंकि जब मैं किसी बेटे को तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए जिक्र करबला करता हूं तो ये जुमला जरूर पढ़ देता हूं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़े करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे। 61 हिजरी में वाक़े करबला, 95 हिजरी में जनाब ज़ैनुल आबिदीन की शहादत हुई है। 35 साल तक जनाब ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे। ज़ैनुल आबिदीन ने दोबारा इस वाक़े की याद नहीं की, लेकिन ये वाक़या जनाब ज़ैनुल आबिदीन को कब याद आया? जब 25 मुहर्रम 95 हिजरी सुबह का वक्त है, तो एक दफा वो वक्त कि जिस दिन जनाब ज़ैनुल आबिदीन इस दुनिया से रुखसत हुए, अपने बेटे मोहम्मद बाक़िर को बुलाया, कहा मोहम्मद मेरे पास आना। जब मोहम्मद आए, कहा मेरे नीचे से मुसल्ला हटा दो। मुसल्ला हटा दिया, वो चादर हटा दी, वो चटाई हटा दी, मुसल्ला सब कुछ जब हटा दिया, तो अब जनाब ज़ैनुल आबिदीन जमीन के ऊपर लेटे। एक जुमला ज्यादा रो के पुरसा दे दे, एक जुमला। अब जमीन के ऊपर लेटे। जब जमीन पर लेट गए तो एक दफा पांचवें इमाम ने कहा बाबा आप जमीन पर क्यों लेटे हुए? आप जमीन पे लेटे हुए। पर जैसे ही ये जुमला सुना, अब सैयद सज्जाद तड़प गए, कहे बेटा मोहम्मद तुमको नहीं मालूम मैंने अपने बाबा को जमीन करबला पे कैसे रेते गल पर पड़ा देखा। ए बेटा मोहम्मद, मैं चाहता हूँ जब दुनिया से जाऊं तो मैं भी जमीन पर खाक। हज़रात से गुजारिश है कि एक दफ़ा सूरह हम 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के सैयद मुमताज़ हुसैन रिज़वी इब्न सैयद आबिद हुसैन रिज़वी की रूह को हिसाब दें। परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे आंसुओं को रुमाल शहजादी में जगह ना है। परवरदिगार इस मजलिस के सवाब मरहूम की रूह तक पहुँचे इसलिए मुनक़्क़िद की गई। परवरदिगार मरहूम को जवाल मासूमीन में जगह ना है। परवरदिगार मरहूम के खानवादे को सब्र जमील अता फरमाए। परवरदिगार हमारे क़ुलूब को मवद्दत आले मोहम्मद से मुनव्वर कर। परवरदिगार हमारे किरदार में तालीम आले मोहम्मद की झलक नजर आए। परवरदिगार जो कोरोना वबा चल रही है वो जल्द से जल्द दुनिया से ख़त्म हो जाए। जो बीमार उनको शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो इस दुनिया से गुजर गए हैं उनको जवाले मासूमीन में जगहाएं। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनकी आमान और अंसार में शुमार।